this live presented by Men Welfare Trust and Safe Family Foundation. Recently, there has been a furor in the media and everywhere else where screenshots of a private chat group called Boys Locker Room, it came to, it was shared on the social media, and it was on the Instagram. The chat group had teenager boys chatting sexually explicit content regarding girls, which was certainly disturbing and a level that we cannot justify at all. उसके बाद मीडिया में, सोशल मीडिया में, सभी जगह इस तरह का एक नैरेटिव बन गया कि बॉयज आर बॉयज, दीज बॉयज आर पोटेंशियल रेपिस्ट, पुट देम बिहाइंड बार्स, और ये सभी तरह की चर्चा हर जगह शुरू हो गई. नेक्स्ट डे हम क्या देखते हैं, अगले ही दिन हम देखते हैं कि गर्ल्स लॉकर रूम ट्रेंड कर रहा है. जी हाँ, गर्ल्स लॉकर रूम में लड़कियां उसी तरह की अभद्र भाषा यूज कर रही हैं लड़कों के लिए, और एक ये लड़कियों का ग्रुप चल रहा था, और हम इसकी चर्चा कर ही रहे थे कि ये both genders आर getting involved into such discussions, और स्कूल लेवल पे और टीनेज लेवल पे इस तरह की चीजें हो रही हैं. हालांकि अभी इसकी जांच हो रही है और हमें नहीं पता कि इसकी कितनी ऑथेंटिसिटी थी, कुछ मॉफ तो नहीं थे, वो सब चीजें भी जांच का विषय है. लेकिन इससे एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई, और वो चर्चा चल ही रही थी कि अगले दिन एक खबर आती है कि एक 17 साल का लड़का, जी हाँ, 17-year-old boy who was accused of sexual harassment by a girl in a Me Too post. Allegedly, an incident that happened 2 years back, he was accused. And then this boy was named, shamed, harassed in the social media. He tried to justify himself. He tried to explain people that I'm innocent. लेकिन किसी ने उसकी सुनी नहीं, उसको थ्रेटनिंग कॉल्स आने लग गई, उस लड़के के ऊपर इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया, वो उसको हैंडल नहीं कर पाया. He succumbed to the pressure and he jumped from the 11th floor residential building and he committed suicide. तो इस तरह के जो वाकया आजकल हम देखने में हमारे आ रहे हैं, ये आंखें खोल देते हैं हमारी, और ये समझ में आता है कि दिस इज अ न्यू वर्ल्ड ऑफ लॉकर रूम जनरेशन. जी हाँ, यही हमारी डिस्कशन का आज टॉपिक है, क्योंकि बहुत से सवाल उठ रहे हैं, बहुत सी उंगलियां उठी हैं सोशल मीडिया में. somebody is blaming the parents, somebody is blaming the school and education system. कोई कह रहा है कि बॉलीवुड का इसमें बहुत रोल रहता है, इंटरनेट, बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है, रेडिकल फेमिनिज्म, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये सब जो है ये लॉकर रूम जनरेशन से संबंध रखते हैं. सो आज इस चर्चा को हम आगे लेके जाएंगे. टू हैव अ हेल्दी एंड अ बैलेंस्ड एंड इंसाइटफुल डिस्कशन, आई हैव अ ग्रेट पैनल टुडे एंड ऑल आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड एमिनेंट पीपल इन देयर ओन स्पेस. Let me just introduce all of you to them. I'm joined by Dr. Bhushan Shukla. Dr. Bhushan Shukla is a renowned child psychiatrist from Pune. Then I'm also joined by Ms. Preeti Gautam. Ms. Preeti Gautam is a very experienced educationist. She's been a principal. She's a former director of higher education in UP. Thank you, Preeti ji, for joining. We have Wasif Ali. Wasif Ali is representing Safe Family Foundation. He's a well-known name in the men's rights movement. We might be joined by Ms. Neeta Bali, who's a principal of GD Goenka School. There is some technical glitch because of which she could not join. We are trying to patch up with her. Then we have Advocate Gautam Panjwani. Advocate Gautam Panjwani practices in Delhi High Court and Supreme Court, and he's a legal expert today in the panel. We are also joined by Swaroop Sarkar. Swaroop Sarkar is one of the founders of the men's rights movement, Save Indian Family. Thank you, all of you, to be here today. To take this forward, Wasif Ali, I'll begin with you because you have seen how all this was unfolded. Teenagers में क्या सब कुछ discussion कर रहे थे, rape, crime, everything, जिसकी कोई justification नहीं है. तो आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? How do you see all of this, Wasif Ali? Yeah, thank you, Amit. Amit, as a men's rights activist, this is a very disturbing trend for me. See, we have been working on men welfare for last 10-15 years. So what we have found is that जो society का, media का, basically social media का एक जो bias होता है, they are totally biased against say men. Okay,
क्योंकि कोई भी इश्यू होता है, दिस मैन आर सो हार्शली जज्ड। एक छोटी सी गलती कहीं पे होगी, इसको इतना ब्लो अप कर देते हैं सोशल मीडिया पे। आप लोगों ने देखा कि अब सोशल मीडिया एक मीडिया ट्रायल का एक पूरा प्लेटफॉर्म बन गया है। हमने मी टू मूवमेंट में भी देखा था कैसे इनोसेंट लोग को भी एट द पिक ऑफ द हेयर कहते हैं, सबको एलिज कर देते थे, तो किसी की डिफेमेशन हो जाता था, किसी की नौकरी चली जाती थी, एंड देयर इज नो टर्निंग बैक। क्योंकि बाद में कोई अपना कोई इनोसेंट भी प्रूव कर देता है, तो बट कंप्लीटली वो इमेज तो टार्निश हो जाती है, एंड पीपल ट्रीट यू एज एज अ कल्प्रिट। नो, द डिस्टर्बिंग ट्रेंड इज दैट ये अब बॉयज को भी पर्कुलेट कर गया है। नो, दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर अस। And Me Too has entered the arena of schools and education. Schools and education, मतलब लोगों को अब कहते हैं men as a gender, boys as a gender की तरफ एक there is no empathy factor left. अब जैसे आपने मेंशन किया, बॉयज लॉकर रूम की तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, नेक्स्ट डे गर्ल्स लॉकर रूम का भी आ गया था, एंड यू विल सी एकदम इट्स वाज अ सिमिलर काइंड ऑफ डिस्कशन देयर, बट देयर वाज हार्डली एनी judgment there or actions there. People were not at all bothered कि some action should be taken. तो आपने देखा कैसे स्वाति मालीवाल she got active, और उसने दिल्ली पुलिस को जाके प्रेशराइज किया, she sent a letter to her asking for action taken report, filing FIR, and इसका रिपरकशन देखिए, इतना फियर मॉन्गरिंग हो गई। some 2-year-old case, that lady Manav Singh's case, she took advantage of all this situation, and she made, see what we feel that she made up that story. She had some grudge against Manav Singh. Because after that story came in that Instagram, that guy was trying to explain to everyone, see that I am innocent, I have not done anything, but he could not take up that pressure. And especially इतनी छोटी एज में, मतलब आप बच्चा एक्सप्लेनेशन भी देगा तो क्या एक्सप्लेनेशन देगा? He has never handled this. मतलब हमारे लिए डिस्टर्बिंग क्या हो रहा है, हमें लग रहा है कि मेल एज ए जेंडर के अगेंस्ट ना, देयर इज अ वॉर अगेंस्ट बॉयज हैज स्टार्टेड नाउ। ये हाँ, मतलब एक तरह से स्कूल इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक बॉयज वर्सेस गर्ल्स, एक ये हेट का एटमॉस्फेयर भी बन गया है। हाँ, मतलब ये ना देखो, एक वेस्टर्न फिनोमेना एक था कि कहते हैं लास्ट 15-20 इयर्स से दिस वेस्टर्न पीपल आर स्ट्रगलिंग विद द फैक्ट दैट देयर इज अ बॉयज क्राइसिस बिल्डिंग अप देयर, एंड देयर इज अ वेरी फेमस बुक, वॉर अगेंस्ट बॉयज बाय क्रिस्टिना हॉफ समर्स। इट्स अ वेरी इंसाइटफुल बुक, एवरीबॉडी शुड रीड इट, and how boys in the school are being targeted and being shamed for being a male gender. Right. They are branding them as a toxic masculinity, and they're made to feel guilty about their gender. Now, I am concerned as a men's activist. Now, it is coming to India now. So this is a factor of grave concern now. I'll come back to you for more on this, Wasif. I'll go to Advocate Panjwani. I think Advocate Panjwani might have to leave a little early also because of his busy schedule. Advocate Panjwani, if you can hear me. देखिए, बहुत से पेरेंट्स के लिए एक ये चिंता का विषय हो गया है जब से हम लोगों की ये डिस्कशंस जो बॉयज लॉकर रूम, गर्ल्स लॉकर रूम के बारे में ये हुआ है। देखिए, इस एज में कई बार पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि बच्चे क्या कौन से ग्रुप्स में हैं, सोशल मीडिया में कितने एक्टिव हैं, नहीं है। गलती से भी अगर कोई बच्चा किसी ग्रुप में ऐड हो जाता है या किसी ऐसी चैट में इन्वॉल्व हो जाता है, हालांकि हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, जो गलत है वो गलत है, लेकिन इसके क्या लीगल रिपरकशंस हो सकते हैं? बिकॉज इस प्रेजेंट केस में जैसे हुआ, सीधा एक DCW की तरफ से एक प्रेशर शुरू हो गया कि अरेस्ट दीज बॉयज और दे कैन बी पोटेंशियल रेपिस्ट, इनको अरेस्ट कीजिए। तो मतलब एक जुवेनाइल बोर्ड एक बनता है, एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जिसके कुछ नुआंसेस हैं कि किस तरीके से अगर कोई जुवेनाइल क्राइम हुआ भी है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, किस तरह से ये 14, 15, 16 साल के बच्चों को आप एक एडल्ट क्रिमिनल की तरह ना बिहेव उनके साथ किया जाए। मतलब अगर आप जुवेनाइल्स को भी, 15 साल के बच्चों को भी एडल्ट क्रिमिनल की तरह ट्रीट करेंगे तो JJ एक्ट का मतलब क्या है? वैसे भी हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब इट गिव्स अ चांस टू रिफॉर्म। आप बड़े बड़े क्रिमिनल्स को भी रिफॉर्म करने का चांस देते हैं, आप यहाँ पे बच्चों की सुन ही नहीं रहे हैं। उनका एक आपके जो आपने फरमान जारी कर दिया, उनका करियर, उनकी लाइफ स्टेक पे आ जाती है। ऐसे में बच्चे इतने प्रेशर में आ गए, जब ये सब चल रहा था, और इसी प्रेशर के चलते में, हालांकि ये 2 अलग अलग इंसिडेंट्स थे, लेकिन माहौल ऐसा बना कि बच्चों को लगा कि मतलब अगर हम किसी चैट में, किसी डिस्कशन में हैं, अगर किसी ने हमारा नाम ले लिया तो वी विल बी डिस्ट्रॉयड, पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी, हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा।
एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया और ऐसे ही माहौल में प्रेशर में आकर एक बच्चा सुसाइड कर देता है। तो आप इस पूरे केस की हैंडलिंग जिस तरीके से हुई है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे मिस्टर पंजवानी? Sir, just to add to what Mr. Basif has said just now, it is not only boys versus girls, it's boys versus rest of the world now. First of all, even boys versus rest of the world. So even though I completely abhor the acts of boys and the contents which have been shared on Instagram and other media, social media, the due process has to be followed. And what is the due process? The due process is if any of the offender is of a minor age, which is below the age of 18, he has... Yeah, yes sir. गौतम जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमें बहुत सारे ट्विटर पे भी और फेसबुक पे भी बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ज्यादा चर्चा हिंदी में होगी तो ज्यादा लोग समझ पाएंगे उसको। ठीक है। तो सर, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इट इज वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन के लिए बना गया है। एनी ऑफ द ऑफेंडर्स जो 18 इयर्स से नीचे के हैं, वो विल नॉट बी फॉलोड अंडर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विच इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूं, दी जुवेनाइल कभी भी अरेस्ट नहीं हो सकता। जुवेनाइल कैन ओनली बी एप्रीहेंडेड। द फर्स्ट डिफरेंस इन अ केस वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जहां पे कोई ऑफेंस कमिट किया किसी जुवेनाइल ने, दी बेल इज रूल नॉट एन एक्सेप्शन। बेल उसको मिलेगी ही मिलेगी। दिस इज द रूल अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट व्हिच इज टू बी फॉलोड। इसमें सिर्फ 3 एक्सेप्शन दिए गए हैं। जो पहला एक्सेप्शन दिया हुआ है स्केल ऑफ बेल, जहां पे बात आती है इफ बेल देने से वो किसी क्रिमिनल के एसोसिएशन में आ जाते हैं, तब इन सच सिचुएशन बेल उसको रिजेक्ट होगी। या फिर वो बेल उसके खुद के लिए हार्मफुल है या उसके खुद के सोशली या साइकोलॉजिकली उसको हार्म करता है, इन सच सिचुएशन बेल नहीं दी जाएगी। अदरवाइज इन ऑल द केसेस बेल शुड बी ग्रांटेड। कमिंग बैक टू द केस जो हमारे हाथ में है, जो हम देखे, from where I see some stringent provisions have been attracted for a simple reason, so that वो खुद को arrest किया जाए। What are the stringent provisions which have been attracted in this case? 465, 469, 471 which pertain to forgery. All the offences are bailable. Bailable का सिंपल अर्थ है कि अगर आप अरेस्ट होते तो आपको वहां पुलिस स्टेशन से बेल आपको मिल सकती है, व्यू सम श्योरिटी और बेल बॉन्ड ग्रांट सकती है। Then there is 509 which is also bailable, but to attract stringent provision 67A and 67 of IT Act has been attracted by the police for no reason from where I see. Simple reason है 65 and 65A को attract करने का ये reason है कि 67 and 67A both are non-bailable offenses. And इसमें पुलिस को, अगर मैं अपनी सरल भाषा में बोलूं, पुलिस के पास powers है to arrest and apprehend and the offender in this case. तो गौतम जी, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा। अगर ये जो आईटी एक्ट के जो सेक्शंस लगे हैं, अगले दिन जो गर्ल्स लॉकर रूम का खुलासा हुआ, सिमिलर तरीके से उन्होंने उसी तरह की चैट जो बॉयज के बारे में थी उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया, उसको वहां पे रेप्लिकेट कर दिया। वो जो सेक्शंस हैं वो तो उसको पे भी अट्रैक्ट होते हैं। बट आपके व्यूअर्स को एजुकेट करना चाहूंगा इस चीज में, ना क्रिमिनल जस्टिस एक्ट के अंदर और ना ही प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंडर्स के अंदर कहीं पे भी देयर इज नो डिफरेंस ऑफ जेंडर। जो 18 साल से नीचे है वो ही अरेस्ट में डेफिनेशन के अंदर फॉल करता है। बट जी द सैड स्टेट ऑफ अफेयर ये है, मैं आपसे एक छोटा सा इंस्टेंस जस्ट इन 30 सेकंड्स आई विल शेयर विद वन ऑफ द केसेस व्हिच आई हैव डेल्ट। दो किड्स थे बिलो द एज ऑफ 18, अ बॉय एंड अ गर्ल, आउट ऑफ देयर ओन विल सेक्सुअल एक्ट में थे इन्वॉल्व इंडल्ज। बट सरप्राइजिंगली पुलिस ने सिर्फ बॉय को अरेस्ट किया, गर्ल के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस कुछ भी नहीं किया, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ पॉक्सो एक्ट क्लियरली सेज इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एनी ऑफ द जेंडर्स। वो बॉय को नहीं और गर्ल को नहीं, अगर वो दोनों वहां पे किसी सेक्सुअल एक्ट में पकड़े गए तो दोनों के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। बट नो, द एफआईआर वाज ओनली लॉन्च्ड अगेंस्ट द बॉय वाज फाउंड इन अ सेक्सुअल एक्ट। सिमिलरली अगर आप देखें, मैं थोड़ा उसको वासन करना चाहूँ अगर अपने डिस्कशन को, डॉरी प्रोविजन एक्ट में गिविंग एंड टेकिंग ऑफ द डॉरी इज एन ऑफेंस, बट इन नॉर्मल केसेस थोड़ा सा मैं आई थिंक डिविएट कर रहा हूं फ्रॉम द टॉपिक, बट you have not seen any of the FIRs which are registered against the girl for giving the dowry.
जी 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 that state of जी affairs has been happening in बिल्कुल India. ठीक कह रहे हैं गौतम जी. हम I will come back to you and we'll try to stick to the subject today because we'll have many more occasions to discuss the misuse of dowry laws. I'll go to Preeti Gautam, Miss Preeti Gautam. देखिए स्कूल के बच्चे, टीनेज चिल्ड्रन, सोशल मीडिया पे दे आर हैविंग ऑब्जेक्शनेबल चैट्स, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट, और दोनों, मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि बॉयज कर रहे हैं या गर्ल्स कर रहे हैं, विलिंगली कर रहे हैं, दोनों जेंडर्स कर रहे हैं. पहले बॉयज लॉकर रूम का खुलासा होता है, फिर गर्ल्स लॉकर रूम का खुलासा होता है. बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया में स्कूलिंग के ऊपर, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ उंगलियां उठाई हैं. आप, यू आर एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यू हैव सीन ऑल ऑफ दिस, you handled children as a principal, as a person who's part of the policy making for education. आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? मतलब स्कूल्स की क्या, मतलब स्कूलिंग में where are we going wrong? अगर हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर, तो ये बड़ा, आज की जो डिजिटल क्रांति का युग है उसमें बड़ा नेचुरल है कि जिसके पास भी स्मार्टफोन है वो किसी न किसी सोशल साइट पर मौजूद है और वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, चाहे वो उसको सकारात्मक तरीके से आप ले सकते हैं या उसको नकारात्मक रूप से आप देख सकते हैं. जब जहां तक ये बॉयज लॉकर रूम के इस प्रकार के मुद्दे की बात है, हमारे चारों तरफ, हमारे समाज में, हमारी शिक्षा संस्थाओं में, सभी जगह ये बहस छिड़ गई है कि हमारा समाज, हमारा युवा वर्ग, हमारे टीनेजर्स जो इस इम्प्रेशनेबल एज ग्रुप में हैं इस समय, वो किस ओर जा रहे हैं, किस दिशाहीनता की ओर बढ़ रहे हैं. और हम ये भी बात कर रहे हैं आजकल की परिवार में बच्चों की परवरिश किस ओर जा रही है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है और शिक्षा व्यवस्था पर तो प्रश्न चिन्ह लग ही रहा है. तो एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े होने के नाते मैं ये मानती हूँ कि केवल शिक्षा जगत से जुड़े व्यक्ति की ही नहीं बल्कि हम सबकी, जो भी समाज का सदस्य है, जागरूक सदस्य है, उन सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है और नैतिक जिम्मेदारी है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनकी पुनरावृत्ति इन अर्थों में ना हो कि उनसे जो हमारे जो टीनेजर्स हैं उनके जीवन पर कोई ऐसा नकारात्मक प्रभाव पड़े या वो परेशानी में पड़ जाएं. इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जो बॉयज लॉकर रूम या जो अभी आप गर्ल्स लॉकर रूम की हम बात कर रहे थे, मैं मानती हूँ कि ये अलग अलग जेंडर में डिवाइड करके इसको, इस समस्या को हम नहीं देख सकते. समस्या को एक मान करके हमें इसको देखना होगा. तो ये वास्तव में उस मानसिकता की उपज होती है जहाँ खास तौर से बॉयज लॉकर रूम के विषय में मैं कहना चाहूंगी, उस मानसिकता की उपज है जहाँ ये समझा जाता है कि गर्ल्स और जो विमेन हैं वो केवल ऑब्जेक्ट्स भर हैं और उनकी बॉडी पार्ट्स के बारे में, उनकी गलत इमेजेस, उनसे संबंधित जो रेप केसेस हैं या कुछ इस तरह की जो चीजें हैं, अश्लील भक्तियां कसना है, ये शो करता है कि हम ऊपर से हम कितना भी दिखा लें कि हम बहुत सभ्य हैं, बहुत शिक्षित हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ऐसा पशु छुपा होता है जो मौका पाते ही उजागर करने को लालायित रहता है अपने को. इक्वलिटी और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जो है जी, इक्वलिटी और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जो हम करते हैं वो केवल ऐसा लगता है बात केवल किताबों तक ही सीमित है. और आज भी हम देखते हैं कि जो सेक्स एजुकेशन या सेक्स से संबंधित बातें करना भी आजकल हमारे समाज में स्टिल इट इज कंसीडर्ड टैबू. मैं उसी पे आ रहा था प्रीति जी, मतलब स्कूल्स, मैं उसी पे आ रहा था प्रीति जी. स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन के बारे में काफी टाइम से चर्चा हो रही है कि एक पर्टिकुलर एज पे जेंडर सेंसिटाइजेशन की जाएगी, सेक्स एजुकेशन की जाएगी. हालांकि हम समझते हैं कि इट इज अंडरस्टैंडेबल कि बच्चे कुछ घंटे स्कूल में बिताने के बाद वो कहाँ क्या कंज्यूम कर रहे हैं एज कंटेंट, व्हाट्सएप में क्या देख रहे हैं, इंटरनेट पे क्या देख रहे हैं, किस किस ग्रुप में है, वो शायद स्कूल की अपनी लिमिटेशंस है, वो सब कुछ नहीं शायद कंट्रोल कर सकते. लेकिन स्कूल में सेक्स एजुकेशन का क्या रोल होना चाहिए, किस तरीके से एक बैलेंस तरीके से कि बॉयज और गर्ल्स में आपस में घृणा का माहौल ना बन जाए, आपस में वो एक दूसरे के हेट मॉन्गरिंग ना हो, किस तरीके से इसको आगे स्कूल्स में लेके जाना चाहिए?
देखिए, जहाँ तक शिक्षा संस्थाओं की बात है, तो हम सब चाहे माता पिता हो, परिवार है, सभी लोग ये मानकर चलते हैं कि जो रोट लर्निंग है या इम्प्रेसिव हमारे जो एग्जाम स्कोर्स है, वही जो है वो हमारा क्राइटेरिया तय करते हैं कि हम जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे, कितना सक्सेसफुल होंगे और कितना हमारा फेल्योर होगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी कि केवल जो हमारे जो स्कोर्स हैं वही हमारी सफलता का क्राइटेरिया तय करते हैं। हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि शिक्षा हमें हमको हमारे जो टेस्ट है उसको परिष्कृत करती है, हमें कुछ इस तरह के जो रिफाइंड वैल्यूज को इंसर्ट करती है, जो हमें एक जिम्मेदार और एक अच्छा नागरिक बनने की ओर प्रवृत्त करते हैं। और जहाँ तक हम देखते हैं कि सेक्स एजुकेशन की बात जब आप करते हैं, तो हम देखते हैं कि सेक्स एजुकेशन कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन आज भी क्लास का माहौल इस तरह का नहीं होता, या कहिए कि जिन घरों से बच्चे आते हैं वहां पर भी इस तरह का माहौल नहीं होता, क्योंकि केवल आप शिक्षा में जो क्लासरूम में बैठे हुए कुछ घंटे के या कुछ मिनटों के अंदर आप सब चीजें नहीं आप बता सकते। जी, जी, परिवार के बैकग्राउंड की भी उसकी भी बैकिंग बहुत जरूरी होती है। तो एग्जैक्टली। ये और खास तौर से इस एज में जब टीनेजर्स जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस से जो गुजर रहे होते हैं, और ये बहुत इम्प्रेशनेबल एज होती है, जो भी बात उनको अच्छी लगती है, उनके मन को अच्छी लगती है, उसको तो वो आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो बात जो रियलिटी के करीब होती है उसको शायद अपनाने में उनको बहुत काउंसलिंग और उस टीचर के रोल की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन हम पाते हैं कि क्लासेस का साइजेस इतना बड़ा है, कुछ स्कूलों की बात मैं नहीं कर जी, रही, जी, मैं ज्यादातर उस पे कॉलेजेस और मैं अभी डिटेल डिस्कशन पे आऊंगा प्रीति जी। गौतम जी, can you hear me, Gautam ji, if you're Yes, there? yes, yes, Amit. Gautam ji, Yeah, because yeah. you have to leave now in a few minutes, then I'll come once again to you before you leave for your last comments. You know कि आप इस पूरे जो इस तरह के केस की जिस तरीके से हैंडलिंग हुई है, जहां पर और भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से पॉक्सो का मिसयूज हो जाता है, यहाँ पे बच्चों पे एलिगेशंस लगने लग गए हैं, स्कूल्स में मीटू के एलिगेशंस लगने लग गए हैं। ऐसे में जो अक्यूज्ड है, बिकॉज अगर जो अक्यूज्ड है, चाहे वो एलिगेशंस झूठे ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक ये पता लगता है कि एलिगेशन झूठे हैं, तो उसका तो करियर, लाइफ, सेल्फ एस्टीम सब कुछ खत्म हो चुका होता है। तो ऐसे में जो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन है, विक्टिम्स की आइडेंटिटी प्रोटेक्शन तो होती है, लेकिन जो अक्यूज्ड की आइडेंटिटी प्रोटेक्शन है जो कि नहीं होती, उसका क्या महत्व है, उसके ऊपर आप कुछ बताएं। सर, क्या वो इसमें होना जहाँ तक आइडेंटिटी प्रोटेक्शन की बात है, आई थिंक दिस लॉ हैज बीन completely violated by the media itself. अगर आप पॉक्सो का एक्ट उठा के देखेंगे, even there the normal provision is, the specific provision is there कि at the role of media in such cases, but the role of media that is only restricted to the alleged victims but not to alleged accused. अब यहाँ पे what I have seen, all the names of the accused, जो सारे teenagers बच्चे हैं, उन सबका नाम has been flashed all over the internet, all over. जी, I completely believe that जितने बच्चे responsible हैं, उनके parents are also responsible and they should be vicariously responsible for the acts of the children. But the due process has to be followed. मैं एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा आपको। मैं कुछ 2 साल पहले, आपको शायद पता होगा, एक छोटा सा एक इंसिडेंट आया था जहाँ पे गौरव गोयल जी के नाम से एक पुरुष ने अपने घर से पंखे से लटक के अपने आप आत्महत्या कर दी। दिस वाज द केस व्हिच वाज हैंडल्ड बाय मी। अनफॉर्चुनेटली उसका सिंपल रीजन ये था कि वो अपने बच्चे से मिल नहीं पा रहा था। टिल नाउ नथिंग हैज बीन डन इन द केस, ही हैज बीन प्रेशराइज्ड, इवन इफ द फैक्ट मीडिया वहां पे कुछ भी एक्यूज के बारे में कहीं पे कुछ फ्लैश नहीं करती है। दे ओनली फ्लैश जहां पे उनको कुछ कमर्शियल बेनिफिट होता है, या फिर जहां पे वो सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल अराउंड होते हैं, उन्हीं के सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंगली मीडिया रन करती है। एंड बिफोर द इवन द ट्रायल हैज बीन कमेंस्ड, जहां पे केस कोर्ट तक नहीं पहुंचा, उससे पहले अपनी जजमेंट दे देती है। तो इट्स अ एक मीडिया और सोशल मीडिया का एक पैरेलल कोर्ट शुरू हो जाता है, जहाँ पे सभी जजेस बन जाते हैं, सभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन जाते हैं और सभी वर्डिक्ट देने लग जाते हैं कि दिस मैन इज अ रेपिस्ट और दिस पर्सन हैज, चाहे वो बाद में पता लगे कि ही वाज इनोसेंट एंड इट वाज अ फॉल्स केस, लेकिन डिस्ट्रॉय तो हो चुका होता है तब तक वो व्यक्ति। पूरा करियर, लाइफ, एवरीथिंग हैज बीन, नॉट ओनली द पर्सन हु हैज बीन इन्वॉल्वड इन दिस केस, बट जो उनके साथ उनकी फैमिली है, फैमिली की एंटायर फैमिली, रेपुटेशन, सब कुछ सर उस तक गिन पाई। जब वो तक एक्विट होके बाहर आता है, तब तक वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऑल्दो कोर्ट को 5 से 6 साल लगते हैं
डिसीजन देने में, लेकिन मीडिया को सिर्फ एक दिन या रादर 1 घंटा लगता है अपना डिसीजन सुनाने में. Thank you, Gautam ji, for all that insight. Thank you so much. Yeah. Thank you. Swaroop Sarkar, now I'll come to you. Swaroop Sarkar, आपने ये पूरा इंसिडेंट देखा. You were very vocal on the Twitter also. आप इसके बारे में काफी बात कर रहे थे, अपने व्यूज दे रहे थे. आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब क्या आपको लगता है कि there is a war between gender जो कि अब स्कूल्स में पहुंच गई है, जो आपने देखा कि किस तरह से मीटू अनफोल्ड हुआ इंडिया में, बहुत सारे केसेस फाइल हुए, बहुत सारी नेमिंग शेमिंग हुई. अब ये मीटू के जो एलिगेशंस हैं ये बच्चे स्कूल में लगाने लग गए हैं, बच्चे स्कूल में सुसाइड के केसेस हो रहे हैं, और यू नेवर नो आने वाले समय में बच्चे अपने टीचर्स के ऊपर भी मीटू के एलिगेशंस लगाने लग गए. तो आप इसको कैसे देखते हैं अनफोल्ड होता हुआ? स्वरूप जी, स्वरूप सरकार. देखिए, मैं ऑलवेज बोलता हूं, आपका लॉ अनफेयर होगा, आपका एक्शन अनफेयर होगा, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ए फेयरनेस इन सोसाइटी. वही चीज हो रहा है जो हमने 2005 में गवर्नमेंट को, लॉ मेकर्स को, वुमन एनजीओ को रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने नहीं माना. आप जैसे जमीन में सीड्स इंसर्ट करेंगे, आपका पेड़ भी तो ऐसे ही होंगे ना जी. आप आम का पेड़ लगा के एप्पल तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ना. नंबर 1, आपने सेक्स एजुकेशन, जो भी जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम आपने बनाया, उसमें आप क्या बोलते हो? बॉयज को सिखाते हो रेस्पेक्ट द गर्ल, लेकिन ये आप भूल जाते हो, रेस्पेक्ट कोई जबरदस्ती की बंदूक दिखा के नहीं होते हैं, रेस्पेक्ट अर्न किया जाते हैं. गर्ल्स को तो आप नहीं बोलते हो बॉयज को रेस्पेक्ट करो. तो नेचुरली सेम वे आप जो एक एडल्ट मेन वुमेन का अंदर डिस्क्रिमिनेट करते हो, उसका जॉब, उसका फैसिलिटी के लिए, आप बच्चे के लिए भी करना चालू कर दिए हो. एक बच्चा होता है, ऐसे नहीं होता है. जो लड़की होता है वो सब बड़े बड़े घर में पैदा होते हैं, और जो बॉयज होते हैं वो मतलब सुपर रिच में पैदा होते हैं, अंबानी का घर में पैदा होते हैं. आप जब स्कॉलरशिप देते हो, बेटे को देते हो 2500 रुपया, बेटी को देते हो 3000 रुपया. तो आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन बचपन से ही किसी न किसी तरीके से ये चीज बच्चे लोगों का दिमाग में बैठते हैं. आप आपका जिंदगी का वो दिन याद कीजिए, घर में चॉकलेट आता है, आपका बहन को 2 चॉकलेट मिले और आपको 1 चॉकलेट मिले, आपका रिएक्शन क्या होगा? तो ये बच्चे लोगों का अंदर एक एंगर, एक फ्रस्ट्रेशन वो बिल्ड होता है. नाउ कमिंग टू दिस, आप इसमें भी देख लीजिए, बॉय लॉकर रूम में जो हुआ, उसके लिए आपने सोशल मीडिया में उसको डिफेम कर दिया, अरेस्ट कर दिया, डरा दिया, धमकी भी दे दिया, नेशनल कमीशन वुमेन सब कुछ आ गया. चाइल्ड मिनिस्ट्री किधर है? हमारा देश में एक चाइल्ड मिनिस्ट्री है, किधर है चाइल्ड मिनिस्ट्री? चाइल्ड मिनिस्ट्री का कोई अभी बयान नहीं आया इसके ऊपर. तो यही तो डिस्क्रिमिनेशन है. आपने एक वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री बना के रखे हो जस्ट नेम के लिए, उधर खाली वुमेन का ही वेलफेयर करते हो, चाइल्ड का नहीं करते हो. जी, मैं I got your point. I got your point, Swaroop ji. I'll come back again. I'll now go to Dr. Bhushan. Dr. Bhushan Shukla. बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है. देखिए, एज अ चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट, बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं, उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है अबाउट सेक्सुअलिटी, टू लर्न अबाउट थिंग्स, तो चाहे वो बॉयज हों चाहे वो गर्ल्स हों, इस तरह की उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है. इसको किस तरीके से, जैसे स्कूल्स में तो वो बहुत लिमिटेड समय बिताते हैं, बहुत समय अपने पेरेंट्स के पास भी बिताते हैं, तो इसको, इस पूरी चीज को किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए इस पूरे केस को देखते हुए इन द बैकग्राउंड? देखिए, बात ऐसी है कि बच्चों का जो सेक्सुअलाइजेशन है वो बहुत जल्दी होता है. जो अपना मीडिया है, जो बॉलीवुड है,
आजू बाजू में बच्चे जो चीज देखते हैं उसमें बच्चों का सेक्सुअलाइजेशन ये बहुत जल्दी होना शुरू होता है, स्पेसिफिकली गर्ल्स का। जी। जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, जो कपड़े बच्चों के लिए आते हैं, शैम्पूज आते हैं, जो हर एक जो चीज आती है वो बच्चों को सेक्सुअलाइज करने के माहौल में जाती है। मेरा सवाल यह है कि ये अर्ली सेक्सुअलाइजेशन के जो खराब परिणाम है वो तो पूरी दुनिया में डॉक्यूमेंट हो चुके हैं। तो हमारी गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ क्यों नहीं करती? जैसे मिस्टर सरकार ने अभी पूछा कि चाइल्ड मिनिस्ट्री इसके बारे में क्या कर रही है, जैसे वीमेंस प्रोटेक्शन यूनिट ने काम किया है, तो जो अपना नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है वो इसके बारे में सो मोटो एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? उनके पास तो ये सब ताकतें उनके पास है, क्वासी लीगल बॉडीज है, जुडिशियल पावर्स है, तो वो ये कुछ नहीं कर रहे हैं। और सेक्स एजुकेशन की बात रही तो अगर आप कोई भी बोर्ड की कोई भी किताब खोल के देखे, ये जो सेक्स एजुकेशन है ये वो 18th और 19th सेंचुरी का चल रहा है। राइट। प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में बात करते हैं, और वो बच्चों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप शादी करने तक बिल्कुल चुप बैठो। इसको अपने देश में सेक्स एजुकेशन बोला जाता है। ये सेक्स एजुकेशन नहीं है, ये चैस्टिटी एजुकेशन है। अगर आपको सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना है तो आपको सेक्सुअलिटी के बारे में बात करनी पड़ेगी, आपको सेक्सुअल अट्रैक्शन के बारे में बात करनी पड़ेगी, आपको सेक्सुअल प्लेजर के बारे में बात करनी पड़ेगी, आपको सेक्सुअल मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करनी पड़ेगी। ये जो सब अंग है उसके, उस अंग के बारे में बात करने में कोई भी गवर्नमेंट पॉजिटिव नहीं है। I have been doing sex education classes with children in school since last 20 years. I do that with boys. और बात यह है कि हर महीने गवर्नमेंट का कोई नया जीआर तो नहीं आ रहा है ना कि जो ये काम को बंद करवा रहा है। ये सोचना पड़ता है, 20 साल से ये चल रहा है। हर महीने गवर्नमेंट पे ध्यान रखना पड़ता है कि आज कौन सा गवर्नमेंट है और इनको सेक्स एजुकेशन चलता है या नहीं चलता है। 20 साल में ऐसा कई बार हुआ है कि इन्होंने उल्टा पुल्टे कोलांटी लगाई है, उल्टी पुल्टी गुठलियां लगाई है और रूल्स चेंज किए हैं। One day you are trying to educate the boys, the other day you are a criminal for trying to educate them. So there needs to be a uniform policy. National Commission for Protection of Child Rights जो है, उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो वो अभी तक नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी। Even in this case, this particular case, कोई भी चाइल्ड राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन ने DCW को ये नहीं कहा कि this is how you have to handle the cases. अगर बच्चों के इस तरह के केसेस आ रहे हैं, nobody came forward. देखिए, एक बहुत बड़ा डिस्कशन इसमें ये होना चाहिए कि वो जो भी कोई ग्रुप था, वो ग्रुप में कुछ मेजर्स थे, कुछ माइनर्स भी थे। जी। मेजॉरिटी बॉयज जो रहते हैं या मेजॉरिटी ह्यूमन बीइंग्स जो रहते हैं इस ग्रुप्स में, वो पैसिव वॉचर्स रहते हैं। उनको मालूम होता है कि जो चल रहा है वो गलत चल रहा है, लेकिन उनकी ये हिम्मत नहीं होती कि उसके अगेंस्ट बात करें, क्योंकि फिर वो ऑस्ट्रेसाइज हो जाएंगे, टारगेट हो जाएंगे। तो इन अ वे जो बच्चों ने ये सब डिस्कशन सहन किया है, the children who have been passive watchers and part of this discussion are actually victims. They are also traumatized. All those boys are traumatized boys. Has the court, the police, or the National Commission for Protection of Children's Rights, have they thought about these boys who had no other option than passively watch this nonsense that was going on there? There has been violation of children's rights here. Absolutely. Absolutely. So we'll take that forward, Dr. Bhushan. I'll go to Wasif Ali. Wasif Ali, ऐसा लग रहा है कि एक जेंडर वॉर स्कूल्स में, कॉलेजेस में पहुंच चुका है। बच्चों के अंदर ये जो जिस तरह के ये हमने चैट्स में देखा, आप इसकी लीगैलिटी अगर छोड़ भी दें तो इसमें इतना हेट, इतना रिवेंज, ये सब हेट और रिवेंज किस चीज का परिणाम है? इस मैटर को जिस तरीके से सोशल मीडिया में ट्रीट किया गया, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन ने इमीडिएटली कह दिया कि अरेस्ट किया जाए सारे बॉयज को जो भी इसके अंदर है। जैसे कि अभी डॉक्टर भूषण ने बताया कि बहुत सारे तो सिर्फ उसमें पैसिव थे, उसमें एक्टिव भी नहीं थे। जिस तरीके से एक प्रेशर बनाया गया, कुछ लोगों ने कहा कि गर्ल्स लॉकर रूम के ऊपर भी इसी तरीके से एक्शन होना चाहिए। तो आप इस सब चीज को कैसे देखते हैं? इसमें जो ये हैंडल किया गया, इस पूरे इश्यू में सबसे पॉइंट ऑफ वरी है कि जिस तरह से DCW चेयरमैन ने इसको हैंडल किया है, उसको देखने से जैसे लग रहा है कि शी इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द इश्यू। उसके अंदर कहते हैं देयर इज सम एंगर, सम हेट इनसाइड हर।
इसको कोई इशू दिखा है, लेट्स गो आफ्टर दिस बॉयज। अभी तो उसने एक नोटिस उन्होंने दिया पुलिस को, अभी इंस्टाग्राम को नोटिस जा रहा है, टन सारे नोटिस जा रहे हैं उसमें। जैसे हाँ, जैसे कोई वुमेन्स राइट्स वायलेशन हो रहा है, ये हो रहा है। अब जैसे डॉक्टर भूषण ने बोला, ये वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, ये लोग तो भूल गए कि यहाँ पे जैसे चिल्ड्रन इन्वॉल्व है। तो इसमें ना, इस पूरे इसमें ना बहुत इनह्यूमन तरीके से डीसीडब्ल्यू चेयरमैन ने इसको हैंडल किया है। एंड इसको अब आज मैंने सुना है कि टेकिंग क्यू फ्रॉम ऑल दिस, जैसे ब्लो अप किया है, किसी ने सीबीआई और एसआईटी की इंक्वायरी मांगी है कोर्ट में। जी हाँ, एक पिटीशन लगाई गई। 16 साल 17 साल के बच्चे, अब उसके पीछे एसआईटी सीआईबी लगा दीजिएगा। तो देखिए, जो जेंडर वॉर की अब जो बात कर रहे हैं ना, बॉयज एंड मेन के तरफ ना हमने जो देखा है, पहले तो मेन देखा था, बॉयज की तरफ भी सारा पर्कुलेट कर गया है। देयर इज लॉट लैक ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स देम। कोई उनको सेंसिटिवली उनके इश्यूज को नहीं समझना चाहता है। उनको एक अलग कहते हैं, एक बॉक्स में डाल दिया गया है, जिसमें कहते हैं आइदर दे विल पंचिंग बैग और दे विल पॉइंटेड फिंगर्स एट, या आप सारी गलतियां दिखाएंगे कि देखो कितनी गलतियां तुम्हारे में, यू हैव टू करेक्ट इट। बट पैरेलली, जैसे मैम ने भी जो बात की थी एक माइंडसेट के बारे में, अब सेम चीज तो गर्ल्स लॉकर रूम में हुआ था, उसमें भी तो मेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा था। लेकिन वो कहां से आ रहा है, उसमें व्हाट इज द लॉजिकल बैकग्राउंड, साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड फॉर इट? हम वो चीज नहीं डिस्कस करना चाहते हैं। बट जब कोई मेन इश्यूज, बॉयज इश्यूज होता है, हम सब मिलकर पूरा सोशल मीडिया, हम उस चीज को डिस्कस करना चाहते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी ट्रबलिंग ट्रेंड हियर। और ये मैं इसमें बोलूंगा, ये पूरा एक रैडिकल फेमिनिज्म का काफी बड़ा रोल है, जिसमें इन्होंने एक जेंडर वॉर स्टार्ट किया है, वेस्ट से स्टार्ट हुआ है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया में भी आ रहा है। पहले ये लॉ के फॉर्म में आया था, क्योंकि जब ये सब चीज होते हैं, सबका एक्सटेंशन लॉ में होता है, सारे लॉज जेंडर बायस इसी से बनते हैं। बट व्हाट इज द फर्मेंटिंग ग्राउंड फॉर दिस? अब सीड कहाँ पे सो करते हो आप? या तो स्कूल्स में करते हो, या तो सोसाइटी में करते हो, या तो कॉलेजेस में करते हो, जो कि वेस्ट में ऑलरेडी काफी हद तक हो गया है। इंडिया वाज बाय एंड लार्ज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट, बट हमें लग रहा है कि अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो नहीं, मैं बिल्कुल मैं काफी हद तक मैं इस पे अग्री करूंगा। इनफैक्ट मैं अगर स्वाति मालीवाल अगर आज हमारे को सुन रही हैं, तो मैं स्वाति मालीवाल को कहूंगा कि यू हैव एक्चुअली बीन अ बिग डिसअपॉइंटमेंट इन हैंडलिंग दिस केस। जिस तरीके से अब आपने जब ये देखी, आपने जब ये सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी, जब आपने स्क्रीनशॉट्स देखे, क्या आपने किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, किसी साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट किया? क्या आपको कुछ एक्सपीरियंस था कि ये बच्चों के जुवेनाइल के केसेस को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या सेंसिटिविटीज होनी चाहिए? कोई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी है, कोई जुवेनाइल एक्ट भी है, ठीक है, आपका मैंडेट है, आप महिलाओं के लिए काम करती हैं, वुमेन्स कॉज के लिए काम करती हैं, आपको एक बॉयज लॉकर रूम दिखा, आपने कहा अरेस्ट देम। यहां पर एक कानून है जो कि बच्चों के लिए बनाया गया है, जहां पर कुछ उनकी काउंसलिंग होती, कुछ उनको रिफॉर्म करने का मौका मिलता। आपने एक फरमान जारी कर दिया कि भाई इनको अरेस्ट कर लीजिए। आपने ये भी नहीं देखा कि वो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक नहीं है, उसमें कुछ मॉर्फिंग की गई है। आपको कुछ एक्सपीरियंस है इन सब चीजों को हैंडल करने का, या आप सिर्फ कुर्सी पे बैठी हैं वहां पर जस्ट बिकॉज ऑफ योर पॉलिटिकल कनेक्शंस? सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने ये सवाल उठाए हैं, जो कि मैं बोल रहा हूं कि आज डीसीडब्ल्यू हो या एनसीडब्ल्यू हो, यहां पर जिसके पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं वो वहां पर बैठ जाते हैं, चाहे उनको उस मैटर में कोई एक्सपीरियंस है नहीं है, उनको कुछ पता है चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, या उन्होंने किसी वुमेन्स कॉज में काम किया हो नहीं किया हो, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एफिलिएशन वो वहां जाके बैठ जाते हैं और फिर ये डिजास्टर करते हैं। स्वाति मालीवाल ने जो बच्चों में जो डिस्कशन हो रही थी वहां पर, हम उसको जस्टिफाई नहीं करते। आप उसकी पहले जांच करिए, आप देखिए कौन इन्वॉल्व है, उनकी काउंसलिंग कीजिए, एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाइए। और अगर आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे अगर आप नहीं भरोसा करते तो उसको साइड में फेंक दीजिए। जुवेनाइल बोर्ड्स की जरूरत क्या है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की जरूरत क्या है? सब कुछ आप ही कर लीजिए, आप ही कोर्ट है, आप ही जज है, आप ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। अगर आपसे नहीं होता है तो स्वाति जी आप मत करिए, आप छोड़ दीजिए। बट आप ये देखिए कि आपके ये जो आपने माहौल क्रिएट किया है, जो आपने एक माहौल बना दिया था जहां पे हर बच्चे को लग रहा था मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर मैं किसी ग्रुप में हूं, उस माहौल के चलते एक बच्चे ने प्रेशर में आकर सुसाइड कमिट कर दिया। 17 साल का बच्चा,
क्या आप उस फैमिली को वो बच्चा वापस लाके दे सकती हैं? यू हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस। और डीसीडब्ल्यू हो या एनसीडब्ल्यू हो, इस पे ऐसे लोग बैठे जो कम से कम बच्चों के मैटर में तो सेंसिटिव हो, उनको कुछ तो एक्सपीरियंस हो। खैर, मैं एक बार दोबारा से क्योंकि एजुकेशन पे काफी बात हुई है इस बारे में, तो मैं प्रीति गौतम जी के पास एक बार दोबारा जाऊंगा। प्रीति गौतम जी, नॉट जस्ट एज एन एजुकेशनिस्ट, but also as Dr. Bhushan is trying to say something. Let's hear him. Okay. I'll go to Dr. Bhushan first, and then I'll go to Preeti Gautam. Yeah. Bolliye Bhushan ji. Yeah. Thank you for accommodating me. See, I think there are two issues here. One is that this boys versus girl issue has to stop. Right. It has to be a humanistic approach and not a man versus woman approach. जी. We all fundamentally agree that women have had extremely difficult time in this world, and many of them continue to have that difficult time. And it is our responsibility as men to support women's rights as well. But this does not mean the swing has to be taken to the other end, and one injustice is to be countered by another injustice. The injustice, Eye for an eye will make the whole world blind. Yes. So the injustice has to be countered by an equitable justice system, and that is what we all have to support. That is first point. Second point is that whenever there is an issue about anybody under the age of 18 years, there has to be a clear government guideline that who has the jurisdiction. Does this Women's Commission have a jurisdiction talking about minors? This is something that has to be the first question, that every power comes with a boundary to that power. Absolutely. Right from Lok Sabha to Supreme Court, from Prime Minister to the state ministers, everybody, every body of government, every citizen has rights, has abilities, has special rights, but there are boundaries as well. There are jurisdiction as well. And the question of jurisdiction needs to be raised here. And people who do not understand this jurisdiction actually need that training. That has to be part of accepting that position, that what are my rights and what are the limitations of my jurisdiction in democracy called India. Got your point, Bhushan ji. Once more, I'll come back to you because I have a very pertinent question for you. But before that, I'll go to Preeti Gautam ji. Preeti ji, not just as an educationist, but you've been a mother. Where do you think हमारी जो society है, जो हमारी family है, जो हमारा education system है, ये पूरा ये जो समाज है, कहीं ना कहीं समथिंग इज रॉन्ग, कहीं कुछ गलत दिशा में जा रहा है? तो आपको क्या लगता है कि मतलब पेरेंट्स शुड टॉक मोर टू देयर चिल्ड्रन, दे शुड टॉक मोर ओपनली टू चिल्ड्रन, मतलब उनकी ऊपर कुछ इंटरनेट या वो क्या देख रहे हैं, किस तरह की फिल्में देख रहे हैं, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन, किस तरीके से क्या बदलाव होने चाहिए समाज में, परिवार में? और अगर आपको लगता है कि स्कूलिंग में या एजुकेशन सिस्टम में या एजुकेशन में जेंडर्स जो हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, तो ये दो चीजों को प्लीज आप जरा हमें उसमें उजागर कीजिए। प्रीति जी, यहाँ पर मैं एक चीज का उल्लेख करना चाहूंगी कि जो बॉयज लॉकर रूम का जो अभी केस हुआ है, इसमें अगर देखा जाए तो मास्टरमाइंड तो एक या दो ही लोग होंगे, और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो जाने अनजाने और चाहने पर और अनचाहने पर ही जो है वो इससे जुड़ गए हैं। उनको ये पता नहीं, रिपरकशंस पता नहीं होते हैं जनरली कि वो अगर किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं या चैट को ज्वाइन करते हैं तो उसके क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और क्या जो है वो उनके जीवन पर, उनके भविष्य में उन पर क्या जो है असर डाल सकते हैं, वो इस बात को नहीं सोच पाते। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो सोशल मीडिया है वो वर्चुअल और रियल वर्ल्ड में अंतर जो है वहां पर नहीं होता, और वहाँ जो बच्चे हैं खासतौर से इस एज में जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसको रियल वर्ल्ड मान करके चलते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि कहाँ किस सोर्स से यह चैट या ग्रुप जो है वो कंट्रोल हो रही है। वो ये नहीं जान पाते कि ये फेक न्यूज है कि रियल न्यूज है, इसलिए इस चैट ग्रुप से हमें जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। तो मैं एक सुझाव देना चाहूंगी कि जो हमारा ना ही उनको जानकारी होती है कि कानून के दायरे कि कानून के नजर में ये क्या है, यूनिट जरूर हो जी,
कि सोशल मीडिया से संबंधित जो एक यूनिट जरूर हो, जिसमें किस तरह से सोशल मीडिया को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका किस तरह से आप लाभ उठा सकते हैं, और किस तरह से कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे डेंजर्स इनहेरेंट हैं जिससे आप को परिचित होना चाहिए, अवगत होना चाहिए, और आप जाने कि किस तरह से आप जो चैलेंज है, जोखिम का जो चैलेंज है, आप किस तरह से उसको डील कर सकते हैं। बहुत से जो हम देखते हैं कि जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, जैसे स्टॉकिंग और अभी ट्रॉलिंग, साइबर ट्रॉलिंग की बात हो रही थी और थ्रेटन किया जा रहा था, जिसमें कि बहुत ही कभी बहुत अप्रिय स्थितियां, अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं। तो किस प्रकार से जो साइबर हेरसमेंट होता है, बहुत से बच्चे तो ये भी नहीं जानते कि किस तरह से अगर उनको इस तरह से उनको ब्लैकमेल किया जाता है, इस तरह से उनको फंसा लिया जाता है जाल में कि चाह कर भी वो नहीं निकल पाते। तो बच्चों को सही जानकारी देने की जरूरत है कि कानून क्या है, क्या चीज कानून के दायरे में आती है, क्या चीज कानून के हिसाब से गलत है। शायद इन बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि क्या लॉफुल है, क्या अनलॉफुल है। और ये भी जरूरत है कि पेरेंट्स थोड़ा मतलब दे शुड ओपन देयर आईज। जो इस तरह का एक वर्चुअल वर्ल्ड में भी बच्चे एंटर कर चुके हैं, बच्चों से थोड़ा खुल के बातचीत करें और इन सब चीजों को एक फैमिली के लेवल पे भी इनको एड्रेस करें। थैंक यू प्रीति जी। मैं एक बार दोबारा से भूषण जी एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि शायद बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे टीचर्स को ये हेल्प करेगी कि इस एज में ऐसे क्या सिम्टम्स या क्या बिहेवियर पैटर्न्स हैं और किस पर्टिकुलर एज में क्या सिम्टम्स और क्या बिहेवियर पैटर्न्स जो बच्चों में दिखे तो एक चाइल्ड साइकाट्रिस्ट या एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेने की जरूरत है। मतलब वो अलार्मिंग बेसिकली जो रेड फ्लैग्स हैं वो क्या होते हैं जो कि एक पेरेंट या एक टीचर को बच्चों में दिखे तो वो आगे उसको गंभीरता से ले सके। I think this is a very important question. Right. क्योंकि लोग पहचान नहीं पाते। मतलब आज के बिजी लाइफस्टाइल में पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ समय बहुत कम मिलता है, टीचर्स भी बहुत कम समय बच्चों के साथ गुजारती हैं, तो पता ही नहीं चलता कि कब वो लाइन क्रॉस हो रही है। So it is very important to identify that line. I will not put that responsibility on teachers because teachers already have a lot on their plate. I would not add additional burden of this to schools and teachers because they are already struggling with whatever society is throwing at them. This is primary responsibility of parents or family. मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो अभी सिर्फ फिजिकल मिलने जुलने वाले इन्फ्लुएंस नहीं रहे, ऑनलाइन इन्फ्लुएंस काफी बड़े हो गए हैं। तो आपका बच्चा जब तक 16, 17, 18 साल का ना हो जाए तब तक उसको अपने रूम में प्राइवेटली इंटरनेट एक्सेस नहीं होना चाहिए। इंटरनेट एक्सेस जो है वो पब्लिक स्पेस में होना चाहिए। जितनी प्राइवेसी ज्यादा रहेगी उतनी गड़बड़ उसमें ज्यादा होने की पॉसिबिलिटीज है। दूसरी बात यह है कि आपका बच्चा जब कंप्यूटर पे काम कर रहा है या किसी चैट रूम से बाहर आ रहा है, आके आपके साथ बात कर रहा है, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि कहीं मेरा बच्चा डरा हुआ तो नहीं है, मायूस तो नहीं है, कि इसी चैट की वजह से कहीं डर गए नहीं गया है, उसने कुछ अवॉइड करना तो नहीं शुरू किया है। क्योंकि बच्चों का जो डे टू डे मूड रहता है, मूड फ्लक्चुएशंस जो रहते हैं, ये पेरेंट्स को बिल्कुल पता होने चाहिए। इसलिए पेरेंट्स को भी खुद के फोन और इंटरनेट बंद करके थोड़ा ऊपर देख के बच्चों के साथ इंटरैक्शन करना पड़ेगा। Families will need to have 2 or 3 hours every day in the evening around dinner time, which is a gadget-free time for family. Very important. Also get an opportunity to switch off. See, most of the children, when they are in these chat rooms, they get trapped in, as Madam has very correctly identified, they are unable to get out of there. I'm very glad कि प्रीति जी आज हमारे साथ है because this is the only sane feminine voice very important we have on this panel, and this is very important that children get trapped and parents have to find out if they are trapped. They have to talk about being trapped. They have to talk about getting out of this entrapment, and parents have to assure the child कि अगर कुछ गलती होती है तो हम आपकी मदद करेंगे। बच्चों को ये डर लगता है कि अगर कुछ गलती हुई और पेरेंट्स को बताया तो पहले घर पे धुलाई होगी, फिर बाहर धुलाई होगी, फिर पुलिस आके फिर से धुलाई करेंगे। इसलिए बच्चे चुप रहने की कोशिश करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो डर है वो कम करना पेरेंट्स का काम है। ठीक है, तो काफी लिमिटेड टाइम है हमारे पास। मैं एक बार फॉर द लास्ट कमेंट्स वेरी ब्रीफली सबके पास जाना चाहूंगा ऑन दिस इंटायर लॉकर रूम जनरेशन। क्या क्या हुआ एंड वेयर आर वी हेडिंग, व्हाट शुड बी डन? क्विकली वासिफ अली, व्हाट वुड यू से?
Where are we heading? What should be done? Amit, I would like Swati Maliwal to resign immediately. This is my only comment, last comment. The way she has handled it, the way she has mishandled it, just made totally mess of it. Is totally untrained to handle situations like this, and she should immediately. She's done more damage, than even the locker room must have done. Yes, yes. yes. And मैं तो इसमें ये भी ऐड करूंगा कि हर चीज को सेंसेशनलाइज कर देना, हर चीज के लिए धरना, कैंडल मार्च, that's not the way to handle things, especially things like this. Anyways, I'll go to स्वरूप सरकार. स्वरूप जी, आप क्या कहेंगे? मतलब हम कहाँ, किस ओर जा रहे हैं और क्या करना चाहिए? वेरी क्विकली स्वरूप जी. I think we've lost connection with. Okay. वेरी अनफॉर्चुनेट है. हमारा ये जो चाइल्ड मिनिस्ट्री है नाम के लिए बना हुआ है, कोई चाइल्ड का वेलफेयर, उसका पेन, उसका सफरिंग, उसका डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कोई नहीं सोचता. बच्चे लोगों के लिए मेरा मैसेज है, भाई आप एक मिसअंडरस्टैंडिंग सोसाइटी में हो. लड़की का 1000 गुना माफ हो जाएगा, आपका 1 गुना भी पकड़ा गया ना, आपका जिंदगी बर्बाद कर दिया जाएगा. वेरी 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 केयरफुल. हमारा हेल्पलाइन है, आपको कोई परेशानी है आप उसमें हमसे बात कर सकते हैं. आज आपका माँ बाप आपसे बात करने के लिए टाइम नहीं देता है, फैमिली में आप दूर बैठे हो, नाना नानी से बात नहीं कर सकते हो. हमारा टाइम में तो मैं किसी से बात कर लेता हूँ. ये बच्चे लोगों को आपने एक लॉकर रूम में डाल दिया है. वो लॉकर रूम से बाहर आने के लिए ये जो आप लोग कर रहे हो, इसका बजाय आपके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठाओ. आपका वॉइस जरूर सुना जाएगा. ये जो आपका गर्ल्स के पीछे भागना, ये सब का कोई फायदा नहीं है. ठीक है स्वरूप जी. इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहूंगा. मैं सभी बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, इस तरह के कोई भी मुद्दे आते हैं तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि अपने किसी सीनियर से, अपने पेरेंट्स से, फैमिली में किसी से, कजन से, या कोई तुम्हारी टीचर आपके बहुत क्लोज है, आप इसको डिस्कस करिए. और सुसाइड जैसा एक्सट्रीम स्टेप जो है, इससे दूर रहना बहुत जरूरी है. मैं बच्चों को, अगर वो सुन रहे होंगे तो मैं उनको एक मैसेज देना चाहूंगा. देखिए, लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आते हैं. हो सकता है आपसे कुछ गलती भी हो गई हो, लेकिन उस गलती को सुधारने का आपको मौका दिया जाएगा. सुसाइड कर लेना जैसा एक्सट्रीम स्टेप जिसका असर आपके पूरे परिवार पे पड़ेगा, ऐसा कोई भी स्टेप आप प्लीज इसके बारे में सोचिए भी मत. आप हमारे देश का, आप हमारे समाज का फ्यूचर है और बहुत चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं. तो ऐसा स्टेप जो कि एक बच्चे ने अनफॉर्चुनेटली प्रेशर में आके उठा लिया, हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसा स्टेप कोई भी बच्चा हमारे देश में इन रीजंस की वजह से ना उठाए. मैं प्रीति जी के पास जाऊंगा उनके लास्ट कमेंट्स के लिए. प्रीति जी, क्या करना चाहिए? हाँ बताइए. हमारा जो फादर्स ग्रुप्स है, they are happy to help such type of boys. If you are feeling lonely or something, they will be very happy. हमारा जो फादर्स ग्रुप्स है, आपकी जो हेल्पलाइन है उस पे भी, मतलब आप कह रहे हैं आपकी हेल्पलाइन पे भी ये बच्चे कॉल कर सकते हैं अगर उनको कुछ चाइल्ड मिनिस्ट्री कुछ नहीं करेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मेंस हेल्पलाइन है, उस पे कॉल कर सकते हैं. ठीक है प्रीति जी, आपके आखिरी क्या इसमें कमेंट्स हैं? क्या किया जाना चाहिए एज समाज? हम किस तरफ जा रहे हैं और क्या करना चाहिए? 1-2 लाइनों में प्लीज. देखिए, हम सब जानते हैं कि परिवार जो है वो हमारी प्रथम पाठशाला है और हमारे माता पिता और शिक्षक जो हमारे वो प्रथम शिक्षक हैं. और हमारे जो टीनेजर्स हैं, इस तरह के इंसिडेंट्स हैं अभी बहुत कम हैं, लेकिन हम आगे आने वाले अगर समय को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम बहुत सारी चीजें जो टीनेजर्स हमारे इतने परिपक्व नहीं होते कि वो जान जाएं कि स्त्री और पुरुषों के संबंध की क्या सीमा होनी चाहिए. तो इस सीमा को, और जेंडर सेंसिटाइजेशन है, अपनी निजता का जिस तरह से हम सम्मान चाहते हैं दूसरे से, उसी प्रकार से हम दूसरे की निजता का भी सम्मान करें. तो कुछ ऐसी बातें हैं जो माता पिता और शिक्षक उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करके, उनमें ट्रस्ट बिल्डअप करके निश्चित रूप से इस समस्या को और कुछ ऐसी सकारात्मक संदेशों से कि ये जीवन की अतिशी नहीं हो जाती यहीं पर, यदि हम कहीं पर इस सिचुएशन में अगर हम फंस गए हैं, हम इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर बढ़ें, हम डिसीजन मेकिंग करें और एक
बहुत एक इस तरह के डिसीजंस लें कि जिससे कि हम अपने पास्ट को की जो गलतियों से सीखते हुए आगे भविष्य में हम किस प्रकार का अपने आप को हम बनाना चाहते हैं, किस प्रकार से हम एक भूषण, जिम्मेदारी की और जवाबदेही की भूमिका निभा सकते हैं, उस पर देखें। भूषण जी, आपके आखिरी कमेंट्स एक दो लाइनों में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? The way there was a change in law because of Nirbhaya unfortunate incident, today we have lost a young boy who can never be criminal in eyes of law because he is a minor. This death and his parents' pain is something that we all should feel. It is an unnecessary death. There are no necessary deaths of children in this world. We need to wake up. There need to be a clear modification of law to protect all children in all circumstances, irrespective of their gender. Absolutely. Government needs to make this change immediately, that no person either employed by government, appointed by government, or subservient to government will take any step that will endanger a child's security and safety. Absolutely. बिल्कुल ठीक आपने कहा। देखिए, मेरा ये मानना है कि लॉकर रूम जैसे इंसिडेंट शायद यहाँ पे नहीं रुकेंगे। जिस तरीके से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, आज एक 17 साल के लड़के ने सुसाइड कमिट कर दिया है मीटू के एलिगेशन के चलते। कल ये जो बच्चा है, ये किसी के भी घर का, ये आपके घर का बच्चा भी हो सकता है। हम किसी भी तरह के गलत बिहेवियर या किसी भी क्राइम का पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन समाज के दर्पण की जिम्मेदारी सबकी है। Right from makers of film, internet content, to the parents, to the school, all of us have to be, we have to take responsibility towards our kids who are the future of our country, of our society. We need to unlearn and then learn ways to handle them in a way that they grow up as a responsible citizen of this world. With this, I would like to thank all my panel tonight. It was a great discussion. Thank you, Dr. Bhushan. Thank you, Neeta. Neeta ji to nahi jud payi hai. Thank you, Preeti Gautam ji, Wasif Ali ji, Advocate Panjwani ji abhi chhod gaye hain. But thank you, Advocate Panjwani. Thank you, Surup Sarkar. Thank you very much for joining us. It was a great discussion. And all of you who are watching, have a great night. Thank you.